जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 और क्लास 8 को डिस्कस किया था। आप सबकी अच्छी रिस्पॉन्स आई है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। और आई होप मैं आप भी इसी तरह से हमारी टीम आपकी हेल्प करती रहेगी। आपके कमेंट्स और जो सजेशंस आए हैं उनके बेस पर भी हमने थोड़ा काम किया है। आई होप इस वीडियो में आपको पिछले से कुछ बेटर एक्सपीरियंस होगा। तो इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 की। इस चैप्टर नंबर 2 में जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड और फो। वी विल डिस्कस अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, their benefits and their side effects also, as well as in the second part we will discuss about the nitrogen cycle, but in this video we will limiting ourselves within a 15 minutes video only, so hope you will enjoy the video. So let's start now. The microorganism, the first word it comes here. So micro says a very small thing. Micro, that is equal to 10 power minus 6. Whatever it may be a centimeter, millimeter, meter. But if we talk about this micrometer, then it's the part of 1 meters. It is 10 power 6, means 6 0 we have to put and divide 1 by 6 zeros. So this is the one. Okay, so this is a very small unit. इतने सूक्ष्म, इतने छोटे साइज के ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनके बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना है। इनको माइक्रोब्स शॉर्ट में बोलते हैं और ये हमारे लिए यूजफुल भी हैं और हमारे लिए डेंजरस भी होते हैं। सम आर यूजफुल एंड सम अदर्स आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अस। So talking about the microorganisms, these are very small organisms which cannot be seen with the unaided eyes. It means we cannot see without the microscope. They can be seen only with a magnifying glass or a microscope. If you have a magnifying glass, then also you can watch them. But with the help of a microscope, you can see them clearly. Microorganisms may be unicellular or may be some multicellular organisms also. Single cell, if an organism is made of single cell, then this single cell animals organisms को हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। यूनि मीन्स होता है वन, तो यूनिसेल्यूलर, यूनि मीन्स वन, यूनिसेल्यूलर। एंड मल्टी मीन्स मैनी, multi means many. So we can guess here, we can take the meaning of multicellular means the organism which is made of many cells. Then it is the microorganism exist alone or in the colony. ये microorganism सिंगल भी अवेलेबल रहते हैं, सिंगल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और some of them are living in a colony also. You can see in this diagram, this is a colony of microorganism. Many microbes are staying together, living together, and this is the company of these microorganism is called as colonies. Colony, okay? Coming to the microorganism के कुछ और बारे में, microorganisms may exist alone or in colony. Microorganisms are found in all kinds of environment. ये बहुत important है, किसी भी टाइप के environment में हम उनको देख सकते हैं। Even in ice cold climate में भी हम इनको देख सकते हैं। They are found in ice cold climate also. In hot springs, गर्म जल के जो गर्म वाटर के जो springs हैं, झरने हैं, उनमें भी इनको देखा जाता है। ये अवेलेबल हैं। डेजर्ट्स में दे आर अवेलेबल, मार्सी लैंड्स में ऑल्सो दे आर अवेलेबल। सो दे आर यूनिवर्सल, वी कैन से एवरीवेयर वो मिलते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। यस, मेनी ऑफ देम आर फाउंड इन अदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी ऑल्सो. So these are
the characteristics of microorganisms. Now coming to are the types of microorganism. Microorganism के types के बारे में बात करते हैं. So they are mainly of 4 types of microorganisms. These are called bacteria, fungi, algae and protozoans. So बैक्टीरिया के बारे में आप खूब जानते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं. उसके बाद फंजाई और एल्गी और प्रोटोजोन्स के 1 by 1 हम इनके बारे में यहाँ पर बातचीत करेंगे. वन मोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड वायरस, बट दैट इज नॉट ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉट ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज द joining chain between the living organism and dead organisms. So which viruses are also considered as microorganism. अगर वो किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में है तो हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंसिडर करते हैं. दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म. यस, अगर कोई वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर स्टे कर रहा है, दैट मीन्स इट विल नेवर ब्रीथ, नेवर रिस्पायर, नेवर फीड और नेवर रिप्रोड्यूस. सो जब ये बॉडी से, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर होते हैं तो एज ए डेड पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं. बट एज एंड व्हेन दे आर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद अ लिविंग बॉडी और ए लिविंग सेल, देन दे स्टार्ट्स द लिविंग एक्टिविटीज अगेन. So these are living in some type of bacteria, some plants and animals also. So these are the types of microorganisms. Here you can see penicillium, that is a type of fungi. These are the bacteria. Here you can see amoeba and paramecium. These are some type of protozoans. Now here you can see algae. These are the green colored plants and they prepare their food themselves. ये अपना फूड अपने आप बनाते हैं. सो ग्रीन कलर की वजह से सनलाइट के फोटोसिंथेसिस करके ये अपना फूड खुद बना ले रहे हैं. सेकंड इज हियर अमीबा, जो प्रोटोजोन्स में कैलकुलेट होता है, प्रोटोजोन्स. हियर this virus is also there. This was a living live video, but it is not working here. So types of organisms में अगर हम examples की बात करें, then algae, so we can see the Chlamydomonas and Spirogyra. fungi में हम देख सकते हैं bread mold, penicillium, aspergillus. इनके डायग्राम हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे. In protozoans we can see the amoeba and paramecium also. Here coming to here you can see the Chlamydomonas. Here you can see ये भी अपना फूड खुद बनाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल. दिस ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस इज देयर. सो ये हियर इट इज स्पाइरोगायरा. तो स्पाइरोगायरा भी अपना फूड खुद बना रहे हैं. ग्रीन कलर्ड ये प्लांटी में काउंट होते हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं. इसके बाद ब्रेड मोल्ड, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रेड के ऊपर डेवलप होने वाली छोटी छोटी जो फंजाई है उसी को ब्रेड मोल्ड कहते हैं. और इसके अलावा फ्रूट्स में आपने देखा होगा, जब कुछ दिनों तक फ्रूट्स को रखा रहने देते हैं या कोई खाना हमारा कुछ दिनों तक रखा रहा जाए तो उसमें फंजाई आ जाती है. तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काउंट होती है. इसके अलावा पेनिसिलियम, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में. एस्परजिलस, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इस तरह के कुछ होते हैं. पैरामीशियम, ये प्रोटोजोन्स में काउंट होते हैं और इनके चारों तरफ छोटे छोटे सीलियाज होते हैं जिनकी हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं. वायरस एक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसमें अपर पार्ट इज कॉल्ड हेड एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज टेल. और ये एक कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर है. ऊपर देखो ये हेक्सागोनल और मल्टी डायमेंशनल शेप्स एक स्ट्रक्चर इसका हेड होती है और नीचे की तरफ एक टेल फाइबर्स होते हैं जो किसी भी सरफेस के साथ में चिपकने में हेल्प करते हैं. इनके बारे में आप डिटेल में अगली बड़ी क्लासेस में जानकारी करेंगे. अभी आपके लिए ओनली इंट्रोडक्शन है यहाँ पर.
क्लास 8th में। अब बात करते हैं इनके इफेक्ट्स के बारे में। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया डिकम्पोजेस ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्योर एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। हम इनको अर्थ के एक सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। दे आर द क्लीनिंग वर्कर्स ऑफ द अर्थ। इकोसिस्टम के क्लीनिंग स्टाफ को अगर हम डिफाइन करें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जितने भी टाइप के कोई डिकम्पोजिंग होने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, उनको डिकम्पोज करके और यूजफुल मटेरियल्स में कन्वर्ट करने। यूजफुल किसके लिए? प्लांट्स के लिए यूजफुल मटेरियल्स में, या अर्थ में इकोसिस्टम में वापस उनके कंपोनेंट्स को लौटाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जस्ट इमेजिन, क्या अगर सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दिया जाए तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं। जस्ट सोच के देखिए कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो यूजफुल हैं या हानिकारक हैं, जितने भी, उनको सबको अगर नष्ट कर दिया जाए तो क्या लिविंग थिंग्स विल एग्जिस्ट ऑन द अर्थ? आपका कमेंट, उसके बाद में हम बात करेंगे उसके ऊपर कैसे कमेंट आते हैं आपके। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑल्सो। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होता है, और नाइट्रोजन जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सभी कंपाउंड्स में बनाने में, जो कि प्लांट्स के थ्रू यूज होते हैं। इन द सोइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन होना जरूरी है, क्योंकि प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को डायरेक्टली एज ए मॉलिक्यूलर स्टेज में यूज नहीं कर सकते हैं। उसको कन्वर्ट करना होता है नाइट्रेट में और नाइट्राइट में, तभी उनको हम प्लांट्स जो है यूज कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। यस, हमने देखा होगा कि जब हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो पिछले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही यूज करते हैं, और उसके लिए जैसे कुछ दही का थोड़ा पीस हम उसमें दूध में डालते हैं, तो वो उस पीस में क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर आपको कभी स्कूल में चांस मिले तो आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दिखाएं। तो वो आपको कैसे दिखा सकते हैं? आपके सलाइवा के थ्रू दिखा सकते हैं, या आप जो खाना लेकर आ रहे हैं, खाने में अगर आपने कोई कर्ड लेके आया है तो कर्ड में भी आपको बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाए जा सकते हैं। फॉर मेकिंग चीज भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। फॉर मेकिंग पिकल्स बनाने में भी यूज करते हैं। ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, पेस्ट्रीज एंड एल्कोहल, वाइन और विनेगर, इन सभी को बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन ऑल्सो। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी हेल्प से मेडिसिन बनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद यहां देखिए, कर्ड बनाने के लिए जो बैक्टीरिया हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। द बैक्टीरिया विच इज यूज टू कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। So the bacterium called lactobacillus that reproduces in milk and helps to convert milk into curd. So ये lactobacillus बैक्टीरिया जो है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद कुछ और देखिए, जैसे कि मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। द फंगस दैट इज कॉल्ड यीस्ट, यीस्ट का मार्केट में मिलती है। यीस्ट reproduces in flour duff and reproduce carbon dioxide during respiration, which makes the duff soft and helps in making bread, cakes, biscuits and pastries. जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लोर के डफ में एंटर करते हैं तो वो ब्रीदिंग के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उस डफ में से बाहर निकलने के लिए जब बाहर निकलती है तो वो जो मटेरियल है वो स्पंजी और पफी बन जाता है, और इसलिए वो सॉफ्ट होता है।
और हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा भी रहता है। देन कमिंग टू मेकिंग एल्कोहल, एल्कोहल बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। द फंगस, इनके नाम आप जरूर याद रखें। ब्रेड बेकिंग में यीस्ट को काम में लिया हमने, उसके बाद आ गया कर्ड में हमने लिया था लैक्टोबैसिलस। मेकिंग एल्कोहल के लिए अगेन यीस्ट यहां पे यूज करेंगे। द फंगस दैट इज कॉल्ड यीस्ट इज दैट रिप्रोड्यूसेस इन सुगर सॉल्यूशन एंड कन्वर्ट्स इट इनटू एल्कोहल। शुगर सॉल्यूशन को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए भी यीस्ट का यूज किया जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस का नाम फर्मेंटेशन होता है। देन मेकिंग मेडिसिन्स, मेडिसिन बनाने में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। और मेडिसिन तो मेनली ज्यादातर मेडिसिन जो है वो जो भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो एंटीबायोटिक्स जो है मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Some bacteria and fungi are used to make medicines which kill the other microbes or stop the growth of disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. यानी कि वो मेडिसिन जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। कुछ एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स के, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। और इनके बारे में आप ज्यादा जो चीजें हैं वो बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। इसके बाद आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे नाम वैक्सीन का। तो वैक्सीन देखिए, एक्चुअली में वैक्सीन है क्या? यू विल बी सरप्राइज, यू सी वैक्सीन आर डेड और वीकेंड माइक्रोब्स। यानी जिस बीमारी की वैक्सीन तैयार की जा रही है उसी बीमारी के माइक्रोब्स को, वो कौन से माइक्रोब है, डेड हो सकते हैं या बहुत ज्यादा वीक किए हुए माइक्रोब्स जो है बॉडी में एंटर करवाए जाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। सो वैक्सीन्स आर डेड और वीकेंड माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। और जब ये वीक और डेड माइक्रोब्स बॉडी में एंटर करते हैं तो बॉडी जो है रिएक्ट करके एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है। तो जब ये एंटीबॉडीज बना लेते हैं तो जब कभी एक्चुअल में इसी टाइप का और माइक्रोब जो है बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई करने में टाइम नहीं लगाता, तुरंत आइडेंटिफाई करके उससे रिलेटेड एंटीबॉडीज को तैयार कर लेता। यही इसका रोल है। दीज एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। डिजीज लाइक पोलियो, कोलेरा, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स, hepatitis, all these are can be prevented by taking vaccines. इन सभी की वैक्सीन अवेलेबल है और अगर ये वैक्सीन ले ली जाती है तो उनसे प्रोटेक्शन मिल जाती है, इन बीमारियों से प्रोटेक्शन मिलती है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उनको एक और नाम से भी हम जानते हैं और उस दूसरे नाम को हम कहते हैं पैथोजेंस। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है डिजीज कॉज करते हैं, मे बी इन प्लांट्स और इन एनिमल्स ऑल्सो। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं। इन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन फूड सब्सटेंसेस एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो आपने कई बार सुना होगा कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो फूड पॉइजनिंग में एक्चुअली होता क्या है कि उस फूड में कुछ ऐसे माइक्रोब्स जो है एंटर कर जाते हैं जो टॉक्सिक्स यानी कि जहरीले सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देते हैं और उनको अगर हम खाते हैं तो फिर हमें हमारी बॉडी उसके लिए रिएक्ट करती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। So some microorganisms grow in food substances and produce toxic substance and make the food poisonous। और ये फूड को पॉइजनस बना देते हैं। फूड पॉइजनिंग कॉज इलनेस एंड इवन इट कैन क्रिएट डेथ ऑल्सो। इससे डेथ भी हो सकती है और अदरवाइज तो इलनेस से भी काम चल जाता है, थोड़ी प्रॉब्लम के बाद में ठीक हो जाते हैं। So, हमें जब भी ठंडा खाना जब हम खाएं या कहीं मास गैदरिंग हो, मास गैदरिंग में हम जब खाना खाते हैं उस समय बहुत ही हमें सावधानी पूर्वक खाने का सिलेक्शन करना चाहिए।
सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल मटेरियल्स लाइक क्लॉथिंग, लेदर एंड वुड। देखिए बरसात के समय में आपने देखा होगा जब हम कपड़ों को 10 दिन 15 दिन तक कंटिन्यू एक जगह रख देते हैं, उठाते नहीं है, उनको धूप नहीं रखते हैं, तो उनमें एक स्मेल आने लगती है। व्हाट इज दिस स्मेल कमिंग फ्रॉम? ये स्मेल जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही आ रही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना काम शुरू कर दिए हैं और उसके वजह से जो बाई प्रोडक्ट के रूप में गैसेस निकल रही हैं, उन्हीं की वजह से स्मेल आती है हमें। इस चैप्टर में हमने इतना ही जानकारी ली है। चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम कुछ और चीजों के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर लंबा हो जाता, वीडियो लंबा हो जाता है, तो लंबे वीडियो में टाइम ज्यादा लगता है, आपको भी इजी रहेगा। और अभी नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है, तो ये आपके लिए अपने सब्जेक्ट के साथ में इंट्रोड्यूस होने का बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मौका है। आई होप आप इस चांस का, इस टाइम का फ्रूटफुल यूज करेंगे और आने वाले समय में अपने आप को तैयार कर पाएंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।